Can you switch on your cameras because I can't see anyone in the class today? Just a minute, ma'am. Good afternoon. Those who can please switch on, please do. Why no one is in all offline? Diwali is coming up, so we Ma'am, are Diwali back. week, ma'am. Yes, ma'am. So we are back. Good afternoon. So, yeah. Hi, everyone. Happy Diwali, first of all, right? Happy Diwali, ma'am. Thank you. Happy Diwali to you as Second well. thing is that, were you able to see any activity or anything on Quick Force? Have you opened that? No, ma'am, just the form which you circulated, we filled that form. Okay. Force, we are not able to see anything. I need to check that. I'm not getting time to talk to Shweta ma'am. Today I'll talk to Shweta ma'am, maybe tomorrow. Then you can check that out, right? So you are aware that we have to do some activity for our, in between before that midterm exam, we need to do some activities because it carries marks, right? As an internal assessment. So we'll do that also. And yeah, we got one in the class today. Acha, let me get back to business. Were you able to understand what we did yesterday in last class? That Yes. hypothesis thing. Ma'am, वो वाली PPT Yes, ma'am. upload नहीं थी, ma'am. Okay, कोई बात नहीं, I'll share. Actually, I put it on Quick Force, but I'll see it. Otherwise, I'll put it in group also, right? But वो सबने form नहीं भरा है, जो form मैंने बोला था, that is still not filled by everyone. Why this is so? Khyati, can you make sure if she is there? I don't know. Khyati? Yes, ma'am, I'm here only. Can you make sure, beta, that everyone fill that form? Okay, ma'am. Huh? Ma'am, I have circulated that in the group, but somehow some students have not filled it. I know But that. That's why I'm saying that you make sure that everyone fill that, because you have not to just fill by yourself, but you have to get it filled from some people as well. Okay, so first start with at least you fill it, then I'll let you know after Diwali, because everyone is busy in Diwali, so I'm not telling you to do right now. So maybe in after Diwali we will catch on that. So I'm sharing my screen. And please take out your copies as well, because we are going to do some activity today. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So we will revise a little bit. Okay. So we talked about some basic concepts in the last class, wherein was first concept was constructs. So construct was any brief idea which is not directly measurable, but with the help of few items, we try to measure that. Okay. Next is variables. Variable is anything that can take differing values. Dependent variable, the ultimately interest of the researcher, what we want to study. Independent variable leads to change in the dependent variable. Like in this example, we did teaching methodology leads to students' grade. So here student grade was
Dependent variable. Dependent variable. Dependent. And क्या हुआ ये? then moderating variables. Moderating variables, you understood that these Ma'am, actually, are there was some error with your network. We couldn't hear you in between. okay. Till here you were there with me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So then moderating variables which are not directly impacting any of the variable, either independent variable or dependent variable, but they are impacting the relationship of the two variables. Like their gender is not as such impacting job performance or as such impacting salary, but in between the relationship, the gender or maybe the education background can be impacted. Mediating variables are intervening variables which can work as a middleman between two variables. Like job knowledge leads to job performance, and job performance, higher the job performance, higher would be the salary. Ma'am, You know? mediating and moderating में से क्या difference हुआ? Okay. देखिए मॉडरेटिंग क्या हुआ बेटा, मॉडरेटिंग हुआ, हमने कल भी लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बड़ी, ये क्या हो रहा है यार, व्हाट्स हैपनिंग, एक सेकंड, देखो मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है कि ऐसा नहीं है कि जॉब परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि जॉब परफॉर्मेंस जो है वो जेंडर को डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट करती है, Yes, ma'am. राइट, या जेंडर जॉब परफॉर्मेंस को एज सच डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। हम इन दो रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं। देखिए हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, ऐसा तो नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन लड़का सॉल्व कर रहा है तो 2 मिनट में सॉल्व कर देगा और गर्ल सॉल्व कर रही है तो 1 मिनट में कर देगा। डू यू फील दिस? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कैन यू मेक दैट डिफरेंस? No, ma'am. नो ना। सो दैट मीन्स जेंडर का परफॉर्मेंस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर वी सी इन आवर लाइफ दैट जेंडर के हिसाब से परफॉर्मेंस सैलरी को लीड करती है, बट फॉर डिफरेंट जेंडर दिस सैलरी कैन बी डिफरेंट। फॉर द सेम वर्क फीमेल is paid less and male are paid more. You know that, na? Yes, ma'am. So gender is moderating here. We know that job performance is leading to salary, but for certain gender it is high, for certain gender it is less. Understood? Yes, ma'am. Mehak, have you raised your hand? Who has raised their hand? Ma'am, I raised my hand. Actually, Yeah. I was just giving the example. Okay, tell me. So, What? like for moderating variable, we can consider gender as the relationship as it is affecting the relationship between the dependent and the independent variable. And while talking in case of mediating variables, like parents' education can be considered as the past education can be considered as the mediating variable for the job performance and salary. Okay, actually what I would like to clarify here, Yes, sir. that it depends upon the researcher and the model what variable he want to take as a mediator or moderator, right? In some studies you can see gender as a independent variable also, in some study you can find it as a mediator also. Generally it is either independent or it is moderator. But let's say there is one example, one variable is trust. Now trust, if you will see real research paper, it can be independent variable, it can be mediating variable, it can be moderating variable. So it will depend upon the research of the scholar or the researcher, that what actually he wants to do.
But we need to understand the meaning. We cannot tag any particular variable that it is always mediating or it is always moderated. But generally we see that demographic variables are generally moderators. Have you understood what I'm trying to tell you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, so it कब means आएगी? it depends on the perspective of the researcher. Yeah, it depends upon the objective and what study he wants to bring in. Okay, so this is all called model, and this model is not done by chance. You know, we design it model depending upon our study. As in last class I shown some paper of mine also to you. You know, there was some objective research question. Based on that objective and research question, we find out some variable, and then we try to define the relationship between the variable. Now these hypotheses are nothing. These hypotheses are the relationship between the variables. We are hypothesizing the relationship only, na? What we are doing? Yes, ma'am. Yeah. We are Yes. deciding the relationships. Yes. Then mediating variable. Now mediating variable is like I gave the example, like there is one ex-employee and this is the boss. Now ex-employee कुछ ऐसा है, मतलब इतना उसका फेवरेट है बॉस की, बिल्कुल आई का एप्पल है वो, एप्पल ऑफ द आई. ठीक है, एक है रिलेशनशिप. अचानक से एक नया पर्सन आ जाता है वाई, और वाई बाई चांस इसका भी बॉस है. ठीक है, अभी इसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस होगा और ये भी इसको पसंद करने लग जाता है, दिस वाई, और फिर ये इधर जाने लगा. इन दोनों का एक रिलेशनशिप था, पर ये जो नया वेरिएबल आया इसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट था कि इन दोनों के रिलेशनशिप को डाउन कर दिया उसने. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडरेटिंग और जस्ट गिव मी 1 सेकंड. Now, if we talk about moderating होता है कि job knowledge and salary are same, but for X person this relationship is strong, and for Y category of people this relationship is weak. लेकिन in this case we are saying because of this, ultimately in relationship में की strength में कोई फर्क नहीं है, but for X category of people it is different, and for Y category of people it is different. But when we talk about mediating variable, mediating means that this relationship becomes weak in the presence of this variable. Have you understood what I'm trying to tell you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It should be very much clear. There should be no confusion around that. In moderating, the strength of the relationship doesn't change. In case of moderating, the strength of A variable and B variable, this strength doesn't change. But for some other variable, but for some other variable, this strength is different, and this strength is अपने आप में, if we are not checking it some without the any moderator, this strength is good enough. But what happens in mediating? In mediating, this strength changes when we introduce this variable. Got it? जैसे A और B दो फ्रेंड्स हैं और तीसरा कोई नया फ्रेंड आ गया, तीसरा फ्रेंड आने से इन दोनों का रिलेशनशिप वीक हो गया, ऐसे इसके थ्रू सारी चीजें होने लगी. Can you imagine this situation? This is called mediating. Yes. Yes, ma'am. Got it. Got it? Can I move further now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What happened to this? Something happened. I don't know what. It's not working.
None of those. Now, next category is extraneous variable. Now, what is extraneous variable? Extraneous variables are those variables which are impacting the dependent variable. This is our dependent variable. Huh? They are impacting the dependent variable, but they are not part of our direct study. Like we say, technology, if we use more technology, the student will score high. But this is not the only reason. The student may also score if they have subject interest or maybe their IQ level is high. राइट अगर हम एक बोले कि SRCC में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या IIM में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट अच्छी होती, डू यू थिंक दैट ये एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है? यहाँ पर एक एक्सट्रोनियस वेरिएबल नहीं कि IIM में ऑलरेडी वैसे इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं विद हाई परसेंटाइल. व्हाट डू यू से? यस मैम. तो अगर हम इस चीज को रीड ही ना करें तो हमारी ये कुछ मिसलीडिंग नहीं लगेगा? यस मैम. यहाँ पर हाँ, यहाँ पर व्हाट वी नीड टू डू, we need to we need to take into account the extraneous variable also as a control variable. ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल्स हम लोग रिग्रेशन में हायर ऑर्डर्स में जब हम हायर लेवल रिसर्च करते हैं हम तब करते हैं. तो हमें कंट्रोल वेरिएबल्स को हमेशा इंपॉर्टेंट रखना चाहिए. कंट्रोल वेरिएबल्स मतलब हमने स्टूडेंट्स का IQ लेवल वी हैव कंट्रोल्ड दैट. ओके, तो मतलब कंट्रोल कैसे करते हैं? हम उसको मेजर करते हैं क्वेश्चनर में और फिर उसको एक कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करके हमें कहते हैं कि हमें इसका इम्पैक्ट इसमें से निकाल दिए. तो पहले हम इसका इम्पैक्ट चेक करते हैं और जो भी वैल्यू होती है उसको हम बाहर निकाल के फिर इसका इम्पैक्ट चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मा पिज्जा लाई और पहले से ही 2 स्लाइसेस पापा के लिए निकाल के रख दी, बचा हुआ आपका. आर यू गेटिंग इट? तो जब हम एक्चुअली में रिग्रेशन करते हैं विद कंट्रोल वेरिएबल तो पूरे में से जितना भी इम्पैक्ट इसका हमें लगता है उसको हम अलग करके फिर देखते हैं कि बचे हुए में इसका इम्पैक्ट कितना है. तब हम बताएंगे ना ये इतना एक्सप्लेन कर रहा है. रिग्रेशन क्या करते हैं? एक्सप्लेन करता है ना वेरिएबल को. हैव यू स्टडीड रिग्रेशन अर्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको समझ आ रहा है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? यस मैम. Yes, ma'am. नाउ Yes, देन ma'am. थ्योरी. थ्योरी क्या होता है? थ्योरी में हमने कुछ इंटरलिंक्ड प्रोपोजिशंस रखे होते हैं दैट दिस लीड्स टू दिस, दिस लीड्स टू दिस, और हमने उन वेरिएबल्स को बार बार प्रिडिक्ट किया होता है, चेक किया होता है, एंड देन हम उसको थ्योरी आते हैं. फॉर एग्जांपल, एक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. पढ़ी है? Have you studied it? Carrot and Yes, ma'am. stick? पढ़ा तो था. Not studied it, but we have heard this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या था ये? What was that? What Can was you please that? repeat the question? What is carrot and stick approach? मैम रिवॉर्ड दे देते हैं या पनिशमेंट. मतलब अगर हमें एम्प्लॉय से काम कराना है या तो हम उसे रिवार्ड देंगे या हम उसे पनिशमेंट. दाम दंड भेद. मतलब कुछ ना कुछ हमें उसको करना पड़ेगा. ओनली देन ही विल परफॉर्म. तो एक थ्योरी बन गई. तो थ्योरी में ये 2 वेरिएबल्स ने इंपैक्ट किया परफॉर्मेंस को. सो थ्योरी इज कॉल्ड दिस. एक थ्योरी है ये कि एम्प्लॉय अपनी मर्जी से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, बाहर से उनको कुछ स्टिमुलस चाहिए, either in the form of reward or in the form of threat. Got it? Yes ma'am. Yes, ma'am. मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स बेसिकली ये जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम होती है दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू स्टडी सम एस्पेक्ट. जैसे मैंने आपको बताया था कि एडॉप्शन ऑफ मोबाइल पेमेंट लीड्स टू परसीव्ड यूजफुलनेस एंड परसीव्ड ईज ऑफ यूज. अब ये तो एक थ्योरी का हिस्सा था कि ये दोनों चीजें कोई भी होगी तो इंसान टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करेगा. अब डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी देयर कुड बी सम थर्ड वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, फैसिलिटेटिंग कंडीशन. अगर तुम इंडिया में ये स्टडी कर रहे हो जहां पर इंटरनेट होना भी एक अपने आप में फैसिलिटी होना है, जहां पर तुम मान के चलते हैं कि इंटरनेट हमेशा होगा, सो दे हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट. बट लेट्स से आप यहाँ पर बात कर रहे हो या किसी गांव में बात कर रहे हो एंड यू आर सेइंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी तो होना उतना जरूरी है. आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका बन जाता है मॉडल. जब आप रिलेशनशिप बनाते हो ग्राफिकली, जब आप अपने रिलेशनशिप को दिखाते हो सिस्टम के, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडल. यहाँ पर मैं ग्राफिकली दिखा रही हूँ. आई एम शोइंग इट ग्राफिकली
that how people will adopt mobile payment. When people find it useful, when it is easy to use, when there are facilitating condition, when people have trust in the system, maybe then they will lead to adoption of mobile. So this is my model. समझ आया आपको? Yes, ma'am. So this model can be different to study, okay, and country to country. ओके चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके थे लास्ट क्लास में. नाउ टेल मी which of the following variable is a primary research problem? Dependent variable. Very good. A. Dependent variable, yes. अभी दूसरी टर्म है प्रपोजिशन एंड हाइपोथेसिस. प्रपोजिशन क्या होता है? व्हेन हम थ्योरेटिकली डिफाइन करते हैं किसी रिलेशनशिप को. हाइपोथेसिस कब है? जब हम एक्चुअली में डेटा कलेक्ट करते हैं. तो जो मैं आपसे डेटा कलेक्ट करा रही हूँ या करती हूँ डिफरेंट पेपर्स में, सो दैट इज बेसिकली हमें उसमें हम लोग उसको जब एम्पिरिकली चेक करना चाहते हैं, देन इट बिकम्स हाइपोथेसिस. और अगर हम उसको एम्पिरिकली चेक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको थ्योरेटिकली सजेस्ट करके छोड़ रहे हैं, दैट बिकम्स द प्रपोजिशन. Have you got it? Yes, ma'am. हमारी जो हाइपोथेसिस हम हाइपोथेसिस में टेस्ट करते हैं और उसमें ऐसे ही ट्रू फॉल्स निकाल के नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं, हम सिर्फ ये बताते हैं इन प्रपोजिशन. ट्रू फॉल्स भी नहीं करते, हम सिर्फ प्रपोज करते हैं कि ये रिलेशनशिप है. एंड हाइपोथेसिस में विद द हेल्प ऑफ डेटा हम प्रूव करते हैं. यू नो, जैसे तो आप हम बस एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं. एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं कि हमें पास्ट स्टडीज से ऐसा लगता है कि अभी जैसे हमने एक एस्टैब्लिश कर दिया कि आफ्टर फेस्टिवल कोरोना विल इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस. यस मैम. तो ये हम एक लिंक एस्टैब्लिश कर रहा है कि होली के बाद भी हुआ था तो अब दिवाली के बाद भी होगा, लेट्स से. ठीक है. और एक्चुअली में जब हम पहुंच जाएंगे सिचुएशन पे, तो हम उस वक्त डेटा उठाएंगे और लिखेंगे कि देखो कोरोना के नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए. तो ये हो जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ये हो जाएगा प्रपोजिशन. जैसे आप कहें कि हमें ऐसा लगता है कि पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होने से लोग लेस नंबर ऑफ टाइम व्हीकल यूज करेंगे, प्राइवेट व्हीकल मतलब, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करेंगे. ठीक है. तो आप सिर्फ इतना ही छोड़ रहे हो, डेटा नहीं इकट्ठा करके प्रूव नहीं कर रहे हो, कभी स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं लगा रहे. तो मतलब आपने प्रपोज किया है. प्रपोज से प्रपोजिशन. और जब आप एक्चुअल में डेटा लेते हो कि प्राइस बढ़ रहा है और फिर आपने लोगों से पूछा कि कितनी बार आप जा रहे हो, तो लोगों ने फ्रीक्वेंसी अपनी कम बताई कि पहले हफ्ते में 5 डेज अपनी कार निकालते थे, अब हम 2 डेज निकालते हैं या कुछ भी. तो वो आप वहां पर एम्पिरिकली उस चीज को यू आर प्रूविंग इट. मैम मैम ये फिर हम प्रोपोजिशन यूज क्यों करते हैं जब ये मतलब इतना रिलायबल नहीं है ये चीज? ये रिलायबल नहीं है बेटा. जब हम कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कोई चीज बिल्कुल नई हो रही है, न्यू है, और उसका डेटा आपको मिल नहीं रहा है, आप सिर्फ यू नो थिंक करते रहते हो. जैसे हम इंडस्ट्री 4.0 आप सबने सुना है? यस मैम. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 2016 में. अभी आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 की बात भी हो रही है, अभी 4.0 पूरा आया नहीं. तो ये प्रोपोजिशन ही तो है. इंसान को क्या है, आगे आगे सोचना होता है ना, प्रपोज करते रहते हैं. तो और एक ही रिसर्चर सब कुछ नहीं करता, कोई प्रपोज करता है और दूसरा फिर उसको या तो अपनी कंटिन्यू स्टडी में फिर उसको प्रूव करते हैं. थ्योरेटिकली स्टैट्स के बेसिस पे पहले थ्योरेटिकली वो इसको प्रूव करते हैं, फिर लोगों के कमेंट्स देखते हैं कि लोग दूसरे रिसर्चर क्या बोल रहे हैं, कि क्या जो मैंने एक थ्योरी बनाने की कोशिश की है या जो प्रपोज करने की कोशिश की है, whether it is justifiable or not. If people agrees to that, कोई criticism नहीं है, तो वो उसको प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करते हैं. See, there is always cost attached when you do any study based on sample. Agree or not? Yes, ma'am. आपको सैंपल भी चाहिए, आपको टाइम एनर्जी भी चाहिए. Why you will do? पहले आप ये तो कंफर्म करोगे ना कि जो मैंने प्रपोज किया वो ठीक भी है कि नहीं. And what other scholar think about that? Yes? Are you on the same page with me? Yes, ma'am. Understood. Any question? No ma'am. No, ma'am.
Then purpose of hypothesis development. Now, what are the purpose? Why we do? First of all, we want to provide a direction to the study. You know, अभी हमने कह दिया कि corona is not good for economy. लेकिन हम कोई डायरेक्शन तो नहीं दे रहे अच्छा किस एस्पेक्ट में गुड नहीं है, या कोरोना इज बैड, या कोरोना इज डेंजरस, पर हम फिर इसको कोई पर्पस कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं. हाइपोथेसिस से हम स्पेसिफिक होंगे कि इन 3-4 एस्पेक्ट पे वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. वी आर सेइंग प्रॉब्लम ऑफ एट्रिशन हम बोल देते हैं, लेकिन वी आर नॉट टेलिंग कि व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ एट्रिशन लीड्स टू व्हाट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हमें डायरेक्शंस मिलती हैं, राइट. Yes, ma'am. जैसे हमने हाइपोथेसिस में पढ़ा भी था, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मतलब द हायर द एट्रिशन या द हायर द डिससेटिस्फेक्शन या डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय, हायर वुड बी द एट्रिशन. अगर एम्प्लॉय ज्यादा डीमोटिवेटेड रहेंगे तो वो अपनी नई जॉब्स ढूंढेंगे. आजकल क्यों हम इतने अच्छे वर्क कल्चर पे स्ट्रेस देते हैं? गूगल के ऑफिसेस के बारे में हैव यू हर्ड अबाउट एनीथिंग? What kind of Yes, ma'am. Ma'am, like Google staff, I mean, Google offices are supposed to have a cafeteria. कैफेटेरिया तो सभी जगह है. नहीं मैम, but Ma'am, they they are are more not happy. कुछ ऐसे था. Apple का भी कुछ. एक्चुअली बहुत फ्लेक्सिबल है गूगल का कि वो एम्प्लॉय के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि जब उन्हें काम करना है तो वो कर लेते हैं. फन होता है ऑफिस में और बहुत सारी रेजुविनेटिंग चीजें होती है. फ्लेक्सिबल कल्चर है. यस. ऐसे कोई डेजिग्नेटेड क्यूबिकल्स नहीं है आजकल. आप देखेंगे नए यस मैम. ओपन क्यूबिकल्स नहीं है. आपको काउच में बैठना है, आपको बीच पे बैठना है, आपको छत पे बैठना है, आपको लॉन्ज में बैठना है. मैम पेट्स लेके आने हैं, सब अलाउड है. ओके. वहां पर इवन रेस्ट रूम्स में बीच में आपको 2 घंटे की नैप लेनी है, यू कैन टेक दैट. ओके. सो देयर आर many different theories that are being tried इस एट्रिशन को कम करने के लिए. अभी सारी एट्रिशन सेटिस्फेक्शन को हाई करने के लिए और एट्रिशन को कम करने के लिए एक्सरसाइज होती है, और एम्प्लॉइज का क्रिएटिविटी लेवल बढ़ाने के लिए. तो कहीं ना कहीं रिसर्च हुई होगी कि इफ एम्प्लॉइज आर गिवन फ्री एनवायरनमेंट, देयर क्रिएटिविटी विल इंक्रीज. और ये सब आपको जितनी भी हाईली क्रिएटिव कंपनीज हैं उनके अंदर ज्यादा मिलेगा. जैसे उनके अंदर एक कंपल्सरली उनको 1 वीक ऑफ लेना पड़ता है, जहां पर उनको बिल्कुल एक अलग जगह पे भेज देते हैं अदर देन ऑफिस, जहां पर वो सबसे कट हो जाते हैं और सिर्फ सोचते हैं. ओके. ये कंपल्सरी है उनके लिए टू ब्रिंग न्यू एप्स और जो आप ब्लॉग्स में देखते हो नई नई चीजें. सेकेंड इज दैट to define the facts, variable, data, information that has relevance in the research. हम सिर्फ उन्हीं डेटा और इंफॉर्मेशन की बात करते हैं जो रेलिवेंट है. अगर मैं ये बात करती हूं कि कोई एम्प्लॉय का मोटिवेशन मुझे मोटिवेशन हाई कैसे होता है उसका, अगर मैं उसको मॉनेटरी बेनिफिट दे देती हूँ और अगर मैं उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देती हूँ. वैसे तो एक वेरिएबल कि अगर मैं उसके फ्रेंड को साथ में रख दूं कंपनी के, तो भी तो उसका मोटिवेशन हाई होगा. अब ये रेलिवेंट है? मैम है तो है रेलेवेंट. हाँ. अगर वो फ्रेंड उस कंपनी में जॉब ही नहीं करता, उस तरह की स्किल में ही नहीं है, फिर नहीं है मैम रेलेवेंट, है ना. वो स्किल सेट होना चाहिए. और दूसरी बात ये है कि अगर वो स्किल सेट होना चाहिए और मुझे जरूरत ही ना हो तो एम्प्लॉइज की. हाँ लाइक स्किल सेट भी होनी चाहिए. ऐसा रियल लाइफ में कितनी बार होता है? काफी बार मैम. कि दो फ्रेंड्स एक ही नौकरी जॉब में, जॉब के बाद फ्रेंड बनते हैं. बहुत कम होता है मैम. नहीं मैम होता है. की वैकेंसी नहीं होना पे तो यही होता है काफी बार. अब फ्रेंड ही रहना ना चाहे, उसको लगे मैं यहाँ क्यों रहूं, तब क्या आप स्टडी करेंगे इस चीज को? नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को ऐसा बनाओ कि उसको सब फ्रेंड लगे. आर यू गेटिंग इट? Yes. मैम.
ऐसे तो एक ने छोड़ा तो सारी सारी दुनिया छोड़ती चली जाएगी जॉब। देन गिव डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशिंग और ड्राइंग कंक्लूजन ऑफ द फाउंडिंग टू लिमिट द रिसर्च एरिया। ये तो हम हमेशा देते ही हैं, सारे रिसर्च डिजाइन के अंदर आएगा पूरा डिटेल फ्रेमवर्क। आई विल टेल यू। लिमिट द रिसर्च एरिया मतलब आप ये बताते हैं कि ये जो मेरी स्टडी है ये मैंने सिर्फ नॉर्थ इंडिया में की है, ये मैंने सिर्फ दिल्ली में की है, या मैंने कलकत्ता में की है, या मैंने चाइना में की है, मेरा एज ग्रुप ये था, मेरे रिस्पोंडेंट इस तरीके के थे, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड ये था। आप कुछ ना कुछ वहां पर लिमिटेशंस बताते हो। कोई भी सिंगल रिसर्च या सिंगल फाइंडिंग कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल। आर यू गेटिंग इट? तो आपकी फाइंडिंग्स की लिमिटेशंस होती है। या आपने मोटिवेशन को इंक्रीज करने के 4 वेरिएबल ले लिए, कोई भी 4, लेकिन कोई 5वां भी तो था, वो आपने नहीं लिया, तो ये भी तो आपकी लिमिटेशन हो गई। limitation हो गई। तो ये भी आपको क्लियरली बताना चाहिए इन एवरी स्टडी। देन टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल वाया एम्पिरिकल टेस्टिंग और थ्योरी बिल्डिंग। तो हम एक्चुअली में 2 वेरिएबल्स के बीच में वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप कि क्या एक दूसरे को लीड करता है, या एक दूसरे को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है या नेगेटिवली करता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वाला भी ले सकता है, हायर लेवल ऑफ ये पॉपुलेशन या पॉपुलेशन इंक्रीज, तो हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, या प्राइसेस हाई डिमांड कम, रिस्क ज्यादा सिक्योरिटी कम, कर सकते हैं। यस, कोई जवाब नहीं है। मैम एक बार दोबारा बोलना, कैन यू रिपीट? रिलेशनशिप हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं ना, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। Yes. ma'am. अगर टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जो है, अगर उसमें प्रीवियसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज होता है, तो हम टेक्नोलॉजी का प्रीवियसी और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में क्या रिलेशनशिप है? द हायर द प्रीवियसी Ma'am, the better is the technology. और मोर एडॉप्शन इट वुड बी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अगर आप पॉजिटिव रिलेशन। हाँ, Positive. और अगर मैं कहूँ, और अगर इसी कंसेप्ट का नाम मैं रख दूं सिक्योरिटी रिस्क, तब क्या होगा? रिस्क मतलब कि कम है हमारे पास सिक्योरिटी। हाँ, हाँ मैम, तो फिर नेगेटिव में होगा नेगेटिव रिलेशनशिप रिलेशन। होगा ना, समझ रहे हो? तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा जब आप वेरिएबल दे रहे हो कि आप रिस्क के बारे में बात कर रहे हो। जैसे आपने अगर एक सिंपल वर्ड रख दिया सिक्योरिटी, और यहाँ पर आपने लिख दिया टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप रिस्क की बात कर रहे हो या सिक्योरिटी में आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो ये बता रही है कि ये सिक्योर सिस्टम, वो डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे खाली वेग सा नहीं छोड़ सकते हम। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. चलिए, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कोई भी हाइपोथेसिस क्लियर एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। मैं एक पेपर खोल देती हूँ पहले आप लोगों के सामने, आप देखना। और आप कंपेयर करना, डू यू थिंक कि जो पेपर में है और जो यहाँ पर लिखा है वो सिमिलर है? आप जरा उसको चेक करना, ठीक है? दिस इज माय पेपर ओनली। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? यस मैम। यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस बनाई। देखो, हमने कहा ट्रांसपोर्ट ऐप जितनी भी है, अगर वो यूजफुल होंगी, इजी टू यूज हाँ। होंगी। कैन यू प्लीज जूम इट? ओके, बेटर। यस मैम। ये प्लस का मतलब होता है
पॉजिटिवली रिलेटेड. ओके, हैबिट, कोलैबोरेशन, परसीव्ड. तो हमने कहा ये 4 अगर हैं फेवरेबल तो ट्रांसपोर्ट एप्स का यूज लोग ज्यादा करेंगे. अब आप यहाँ पे देखिए, this is our first hypothesis. PU is positively related to usage of transport app. Now you see, this is very simple, very precise, direct, clear cut दिख रहा है. Ambiguity दिख रही है आपको कहीं? नो मैम, साफ है. हम कंपेयर करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक से. क्लियर एंड प्रिसाइज. रिलेशन स्टेट कर रही है, बताओ. रिलेशन स्टेट कर रही है. यस मैम, वो Yes, ma'am. कोलैबोरेशन इन सब का रिलेशन है यूज ऑफ आप सिर्फ H1 को पढ़ो. आप देखिए इस H1 को पढ़िए. आपको लग रहा है कि कोलैबोरेट कि वो रिलेशनशिप बता रही है. यस बता रही है मैम. पॉजिटिवली. Yes, ma'am. Positively related. डायरेक्शन बता रही है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हम जो भी पढ़ रहे हैं हम हवा में नहीं पढ़ रहे हैं. दिस इज एक्चुअली यूज्ड इन स्टडीज. टेस्टेबल है, क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? मैंने कि यही हुआ है. Yes, ma'am. यस मैम. रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका मतलब ये है, आप देखें मैंने इसको बताने से पहले मैंने यहाँ पे बताया परसीव्ड यूजफुलनेस इज द फर्स्ट बिलीफ ऑफ टैम फ्रेमवर्क. मतलब ये थ्योरी का पार्ट है. इफ शी इज फाइंड इट यूजफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, रूट प्लानिंग, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, मोबाइल टिकटिंग, ये सारे के सारे बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐप हैं. फर्दर, commuter will use any transport app only after evaluating the benefits and cost involved. Several studies have also studied the positive relationship between PU and usage of app. और ये मैंने पुरानी स्टडीज का रेफरेंस दे दिया. ओके, तो दैट मीन्स कोई भी हाइपोथेसिस हम एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज के कंटेक्स्ट में बनाते हैं. कुछ तो रेलेवेंस हो उसका, कहीं से कोई तो लेना हो, टाइमली होनी चाहिए. मतलब जो चीज हो चुकी, जो सबको पता है. अगर आप ये हाइपोथेसिस बनाओ कि सूरज राइज करता है ईस्ट से, कोई जरूरत है उस स्टडी की? नो मैम. अगर 2000 साल पहले बनाती वो हाइपोथेसिस तो शायद उसका फायदा होता. अभी तो सबको पता है. यस मैम. तो टाइमली होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए और पर्पस होना चाहिए. तो ये कुछ हाइपोथेसिस के करेक्टरिस्टिक्स हैं. राइट नाउ हाइपोथेसिस 4 तरह की होती है. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल, रिलेशनल एंड डायरेक्शनल, एंड नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव. सिंपल जो हाइपोथेसिस मैंने आपको अभी भी दिखाई वो सिंपल है. कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है. मैं कभी दिखाऊंगी आपको किसी रिसर्च पेपर में. पर्पस में जो मैंने हाइपोथेसिस आपको भी दिखाई दैट इज कॉजल. मैं यहाँ पर एक कोज एस्टैब्लिश कर रही हूँ, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही हूँ. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. क्लास में सो यहाँ पर एक कोज एस्टैब्लिश हो रहा है कि ये बढ़ेगा यूजफुलनेस ओनली देन ट्रांसपोर्ट ऐप होगा. सो दिस इज कॉजल. डिस्क्रिप्टिव क्या होगी? डिस्क्रिप्टिव होती है कोई भी सिंपल हाइपोथेसिस. फॉर एग्जांपल जैसे हम ये कहते हैं कि बॉयज यूज मोर इंटरनेट फॉर एग्जांपल और फोन देन गर्ल्स. दिस इज डिस्क्रिप्शन. हम कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं डेटा के बेसिस पर. यहाँ पर हम कोज नहीं कर रहे हैं, पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. राइट. एसोसिएशन होता है रिलेशन एंड डायरेक्शनल. रिलेशनशिप में सिर्फ हम इतना बोलते हैं कि दिस इज एसोसिएटेड विद दिस. डायरेक्शन में हम डिग्री भी बता रहे होते हैं कि ये पॉजिटिवली रिलेटेड है और नेगेटिवली रिलेटेड है. देन नल हाइपोथेसिस, और ये आप लोगों ने शायद जब स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग किया होगा आप लोगों को Yes, पता होगा. ma'am. We did this null and alternate hypothesis. ओके, चलिए थोड़ा सा आपकी नॉलेज टेस्ट कर लें. इफ
One is studying the impact of variable salary component on job satisfaction. Then variable salary is, अरे मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, बताओ. Ma'am, independent. Independent. सब इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. A part. I'm A part. A. Very good. A. All of the, Ma'am, all of the above. All of the above, ma'am. इम्प्लीकेशंस कब डिस्कस करते हैं हम इसमें? हम यूनिट ऑफ एनालिसिस की कब बात करते हैं कि कैसे मेजर करेंगे, क्या यूनिट होगी? डू वी टॉक अबाउट दैट? No, ma'am. चलिए, ये अभी जितना भी रिमेनिंग टाइम है, टेक आउट योर कॉपी एंड पेंसिल्स एंड राइटिंग मटेरियल एंड डू दिस. एक सेकेंड, मैं आपको म्यूट पे, मैं एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. Ma'am, can you please share it again? हाँ, मैं कर रही हूँ, आप इसको प्लीज करिए और मैं आई गिव यू 15 minutes. I'll ask what you have done. Okay, I'm sharing it again.
Yeah, done. Ma'am, still Yes, doing. ma'am. Hmm? Yes, ma'am. क्या ओके डिफाइन कौन करेगा प्रॉब्लम को डिफाइन? मैम मैम जो लगी है मतलब हम्म sales मैम figure of कशिश mega मुस्कान sales territory is not good. सॉरी sales territory of Mega was not good. This is the हाँ problem. चाहिए. बट हम ऐसे तो से नहीं, हाउ डू वी Ma'am, राइट बेटा? We can write कि was मतलब the problem जो थी वो हाँ cases of हमें लिखना है कि नहीं, बट आपने लिखा क्या है, कॉपी पे क्या लिखा है? आस्क यू टू राइट इट ऑन योर Yes, नोटबुक्स में। आपने Hmm. कॉपी पे क्या लिखा है? ma'am, मैम लिखा तो है no ये sales figure due to figure. lack of. Yes, ma'am. So the sales are declining. Yes. Yes, yes ma'am. ma'am. A decline how in sales sales figure due to lack of sales of Mega. ma'am Sorry? how sales declined due to lack of Mega's sales skills नो नो selling नो नो, दैट इज आवर assumption. हमें नहीं पता अभी ऐसा है या नहीं। बिजनेस प्रॉब्लम तो मेन ये है कि सेल्स डाउन जा रही है। मैम बट Yes, उसमें ma'am. लिखा है That कि should be जैसे the only Mega problem. is new Sales hire has declined. नहीं, बट यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि सारा कुछ न्यू हायर की वजह से ही हो रहा होगा? मैम क्योंकि इसमें लिखा है ना द सेल्स ma'am. फिगर ऑफ हर सेल्स टेरिटरी। her sales वहाँ पे territory सेकंड लाइन में मेंशन है. नहीं बेटा, हर सेल्स टेरिटरी तो इज ओके, बट इट्स नॉट मैम इसमें लिखा है it's not good उसमें ये तो लिखा है It's मैम because her of sales territory has not इट इज been good बिकॉज ऑफ मेगा ओनली, उसी की वजह से। मतलब पूरी कंपनी की सेल्स नीचे नहीं जा कुछ रही और है भी तो रीजन हो सकता है ना। तो उसकी हम नीचे बिजनेस जा रही है प्रॉब्लम में ये नहीं लिखेंगे कि मेघा, हमें लिखेंगे the Low sales sales figure, figures no? are, Yes, मैम यही लिखा है मैम. यस मैम सेल्स फिगर मेघा का नाम नहीं लिखा. है ना? Yes, हमें ma'am. नहीं पता कि वो एक्स, अब उन्होंने क्या क्या वेरिएबल निकाले उसके लिए, किस क्या क्या इम्पैक्ट करते हैं, कौन से वेरिएबल है इसमें? मैम मैम डिपेंडेंट है. negotiation skills नेगोशिएशन मैम वेरिएबल है। डिपेंडेंट Number वेरिएबल of हमारा calls सेल्स per हो गया. day. एक मिनट बेटा, ये क्रॉस सेल्स हो गया. क्रॉस टॉक्स में डिपेंडेंट A number of वेरिएबल calls सेल्स हो गया मैम मैम. सेल्स हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके वेरी गुड। और इंडिपेंडेंट नेगोशिएशन स्किल्स, negotiation skills नंबर ऑफ कॉल्स मेड पर डे और एक्टिवनेस activeness of the employee employee. वेरी गुड मैम तो ये जॉब हमारे हो गए। परफॉर्मेंस आएगा इंडिपेंडेंट एज अ होल. इसमें ही हाँ। आ जाएगा ना वो या इंक्लूड वो हो जाएगा ना जॉब नहीं परफॉर्मेंस नहीं नहीं तीनों चीजों से जॉब तो बना परफॉर्मेंस नहीं यार. जॉब परफॉर्मेंस या तो फिर जॉब परफॉर्मेंस भी हमारा हम दो डिपेंडेंट में आना चाहिए इंडिपेंडेंट था भी ले क्योंकि सकते, सुनो हम दो डिपेंडेंट भी ले सकते हैं, जॉब परफॉर्मेंस यस भी मैम होगी और डिपेंडेंट सेल्स भी। आएगा जॉब और परफॉर्मेंस. हम इसको मीडिएटिंग भी रख सकते हैं कि इसकी वजह से यस मैम मैंने हमारा जॉब मेडिटेटिंग भी रखा परफॉर्मेंस बेटर हुई और जॉब परफॉर्मेंस की वजह से सेल्स बेटर और हो। मैम बेटर हो गया। हम जॉब परफॉर्मेंस को एक्सट्रानियस वेरिएबल भी रख सकते हैं क्योंकि वो सेल्स पे डायरेक्ट कर रहा है इम्पैक्ट. पर उसमें हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते बेटा। अगर मैं Extraneous एक्सट्रानियस नहीं ले हुआ। लूंगा तो नहीं ले नहीं. सकते। अच्छा Extraneous ऐसे नहीं लेते। हम मोटिवेशन लेवल को ले सकते हैं एक्सट्रोनियस। नहीं फिर नहीं बेटा, हाइपोथेसिस नहीं मोटिवेशन बनेगी. लेवल एज सच, मोटिवेशन अपने आप में कुछ नहीं होता, मोटिवेशन किसी चीज से बनता है ना, इट्स अ कंस्ट्रक्ट। मैम ठीक है। वो एक्सट्रोनियस ऐसे नहीं होता। एक्सट्रोनियस हो सकता है इकोनॉमी कंडीशन, लाइक कोरोना पीरियड था, सब कुछ अच्छा चल रहा है पर अब रेडीमेड गारमेंट कोई खरीद ही नहीं रहा तो सेल डाउन हो गई। लाइक जैसे अगर हम लोग कुछ एक्से लेते हैं जैसे आपने कोरोना पीरियड वगैरह बताया तो दैट शुड बी मेंशन्ड इन दी केस या फिर हम हाँ, अपने in the अकॉर्डिंग study। ले सकते नहीं हैं वो हमें अपने अकॉर्डिंग उस एस्पेक्ट पे सोचना पड़ता है। ओके तो मैम जैसे अगर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि सेल्स इसमें भी इस वजह से डाउन गई हो अगर हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से लेना है तो बट यहाँ पे तो जो मेंशन्ड है उसी में से लेंगे. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग ना कि वो हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं कि मेंशन होना चाहिए। देख लास्ट लाइन में लिखा है गिवन द फॉलोइंग सिचुएशन डू द अब फॉलोइंग. आप मेरे को 4 हाइपोथेसिस बना के दिखाएं, आप जो भी मैम, मान रहे हैं। एक्सट्रोनियस एक हो देखो, सकती है. एक्सट्रोनियस की हाइपोथेसिस नहीं होती बेटा, ठीक है। हाइपोथेसिस हमारी तभी होती है या वो मीडिएटिंग हो, मॉडरेटिंग हो, इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो आप जो भी ऊपर वेरिएबल्स आपको लग रहे हैं, देयर इज नो राइट और रॉन्ग क्वेश्चन, जो आपको लग रहा है उनसे मुझे 4 हाइपोथेसिस बना के दिखाएं आप। मैम एक हो सकती Motivation है level कि of Calls हो गए एक तो मैम एक सेल्स ऐसे फिगर बना Negotiation सकते हैं skills कि have direct impact on sales. सॉरी, and वन बाय वन। Negotiations
negotiation skills have direct impact on the sales. Very Ma'am, good. another one could be sales Direct figure per impact day. हम कर सकते हैं या हम कह सकते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. मैम Ma'am, दूसरा ले सकते हैं activeness कि सेल्स फिगर पर डे बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ कॉल्स. एक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि so इसमें लाइन has लिखी है impact on sales. sale. And ma'am, Yes, increasing ma'am. number of calls made per day can also cause an Okay, increase now in मैम now हम what you will do कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स के बेसिस पे ले सकते हैं कोई हाइपोथेसिस now को. now मैम what you लाइक will do- इसमें Ma'am, एक लाइन break लिखी है ना Wait, कि can I if speak little bit? Can I speak little bit? Now this ठीक is your है. activity question जो हमारा मिड टर्म में जो हमें एक छोटा सा असाइनमेंट देना होता है. So this is your part of the assignment. There would be several small things would be that will constitute your part of the assignment. ठीक है? तो आप इसको एक प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे और मैं उसमें जरा पूछ लूंगी और आप इसको प्रॉपर पेपर पे करके दिखाएंगे और you will upload it on Quick Force, right? समझ आया आप लोगों को? ओके मैम. ठीक है, वो मैं थोड़ा सा एक बार श्वेता मैम से पूछ लूंगी कि वो कैसे होगा, देन आई विल लेट यू नो ऑन द ग्रुप. ठीक है, ओके मैम. ओके. अभी के लिए हम वाइंड अप करते हैं. विल मीट आफ्टर 15 मिनट्स. तो मैम दिस क्वेश्चन विल बी आर C1 या फिर और कुछ दोगे आप नया? मैं साथ साथ देती रहूंगी बेटा, ओके मैम, है ना? ये तो है ही है ना. ठीक है मैम. आप लोग जो Okay, फॉर्म ma'am. भी कर रहे हो दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन. इट्स नॉट Okay, ma'am. दैट कि वो ऐसे ही है. ओके मैम. थैंक Thank यू you, ma'am.